Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So, in our, have you called them? Those guys are absent. Uh, so, in the probability, we have maximum times the questions coming on the standard deck of cards. And where are you all watching earlier? Anyways, we get acquainted with firstly what are the cards doing. Okay. So, the standard deck of cards is like this. Okay. So, we have the face cards. These are called the face cards, right? The Jack, Queen, and King. Jack, Queen, and we have the ace is the A. Okay, that's the ace. Then from 2 to 10. 2 to? So 2 to 10, the 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 9. Now we have the diamond, the club, the heart, and the spades. Now you see spades and diamonds. They are, clubs and spades. They are black. And the hearts and the diamonds are red. So who are red? Diamond and hearts. Diamond and hearts are red. And club and spade are. How many we have face cards are? 3 in the each group. Okay. So 3 in each group. So how many total face cards we have? 12. 4 into 3 is 12. Got it? So remember this thing. That we have 52 cards in a standard deck. Now in a standard deck we've got 4 suits, diamond, clubs and hearts. Okay. And spades. Now face cards include Jack, Queen and King. Now black cards include all clubs and spades, and red cards include hearts and diamonds. So yes, hearts and diamonds. Once now. आज है ना ये you have the boot camp at 2. That's why I took early class. Sit down. Better. So I showed you actually this is the cards, huh? The 52 deck of cards, right? We got the face cards, the Jack, Queen, and King, total 12. We got red and black cards, clubs and spades are black, the heart and diamond are red. Okay, and total we have 52. The standard deck of cards is 52. So how many are these? 13. So 13, 13, 13, 13. Okay, 13 diamonds, 13 clubs, 13 hearts, 13 spades. That make it 52. So in the 52, we have 4 suits, diamond, club, hearts and spades. So the clubs and spades are black and the hearts and diamonds are red, and the face cards are Jack, Queen and King. How many total? 12. Because 4 times 3. Now we have what is called the conditional probability. This is our next topic, and the Bayes theorem is actually based on the conditional probability. Okay, it's going to be inverse of it. So we need to understand today what is the conditional probability. What is the conditional probability? Is simple as it is that we have, say for example, 2 events happening. Now, firstly, these 2 events can be inclusive or exclusive. If they are exclusive, then they don't worry about that. This has happened. Doesn't matter. But if they are inclusive, that means if this has happened, it can impact this. For example, मेरे पास 4 balls है, ठीक है, red, और 4 balls हैं black. We've got 4 red balls and 4 black balls, right? अब मैंने एक निकाली, वो red आ गई, ठीक है, और मैंने साइड में रखा इसको, तो आ गया ना, मेरे पास red आ गया है एक, ठीक है. अब मुझे पता है red आ गई है एक, so मेरी probability अब जो next time की होगी वो 3 balls red versus 4 balls black है. If a particular event has occurred, and now I am telling what is the probability of getting the red ball. Before that, it was 4 by 8. Before it was what? Because I had 4 red balls and 4 black. Total is 8. So what was the probability of getting the red ball? Now I am saying the question, if one of the ball picked was red, okay, now what is the probability of getting the red ball? So now this one pick will affect the probability. It won't be the same again. The next time, if I put it back, then again this probability will be same. But if I'm not picking back, now the red balls are not 4, they're 3. So that means if I have some event, I have to see the probability of say A.
I have to see probability of, and given is the probability of B. The B is given, that is read as given. Find the probability of A given B. We read it like this. Find the probability of A given B. Now, it will depend on whether they are exclusive or inclusive. If they are disjoint, mutually exclusive or not. If they are independent of each other, then I don't care about this. If I find the probability of A, it will come with the probability of A. Simple as this. We'll see in a formula also. So if I say what is the probability of B given A, if they are independent, so that means if they are independent, A के होने से तो B में कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला ना. It won't affect the B. So इसकी probability फिर probability of B ही निकलेगी, right? If they are independent, but if they are dependent, so dependent में हमारे पास एक multiplication theorem है कि अगर मुझे करना होगा A intersection B. But if they are dependent, if they are what? Then that will be equal to probability of A into probability of B. This multiplication theorem is right. You need to write this thing. Okay, remember this thing. That if, but when will this happen? If they are dependent. If they are what? They are dependent on each other. Then the probability of A intersection B or A and B is probability of A. This we can also write it as P, probability of A and B. Okay? Because I told you A union B means A or B. Right? And A intersection B means A and B. It will be equal to the product of the two. When they are dependent. If they are independent, there will be a different story. Okay? Now what will we learn on this? We have an independent inverse, a dependent inverse, and we have conditional probability. Okay? Now, this is key vocabulary. One or two events independent. If they don't, rolling a die and getting a 4 and then rolling second die and getting 5, how does it matter? मैंने ये डाई रोल किया 4 आने का है और मैं दूसरा डाई कर रहा हूँ उसमें 5 आने का है. इस 5 आने को इस 4 से कोई वास्ता? They are independent. They are exclusive. They are not inclusive. So it has nothing to do with this. So if I say what is the probability of B given A, nothing, B only. Right? Get the point? In my hand is the one dice and second is the second die. Okay? I am rolling this die. What is the probability of getting 4? Say this is the probability A. I am rolling second die. What is the probability B? Now मुझे B आ गया कि उसमें 5 आ गया है. ठीक है? So if the B is given, मैं बता रहा हूँ what is the probability of getting 4? In this A, I am saying what is the probability of getting 4. In this, I am saying what is the probability of getting 5. अब 5 आ चुका है. इस die में 5 आ गया. So what is it, the probability of it is? This will be 1 by 6, right? What is the probability of getting 5 in it? 1 by 6. Okay? Now, will it affect the probability of getting 4 in it? No. Right? So probability of getting A, I say what is the probability of A given B? What is B? B is, what is the probability of getting 5 in this die? Okay? So वो आ चुका है, 5 आ चुका है. What is the probability of A? It will be same. असम में फर्क नहीं. So it will be probability of A. Okay? If they are independent, they are what? And so on. Getting? We try to shorten a quick class today because what are the outcomes or occurrence of the first event? This is not the conditional probability and dependent events. And what? Dependent event में क्या है कि आपने ये इवेंट किया लेकिन उससे ये वाला मुनहसर हो रहा है जिसमें अभी बॉल्स का बताया. ठीक है? I don't know examples given. आपने ड्रा किया कार्ड फ्रॉम अ डक, नॉट रिप्लेसिंग इट, देन ड्राइंग ए सेकंड कार्ड. आपने इसको रिप्लेस नहीं किया. ठीक है? आपने डेक में से एक कार्ड निकाला, फॉर एग्जाम्पल आपने फेस कार्ड निकाला. अब एक वो कम हो गया ना, जो नेक्स्ट टाइम की प्रोबेबिलिटी है वो तो उसमें से भी माइनस करना पड़ेगा ना, ये मत रहेगा उसमें. अगर वो 1/12 था, ठीक है, अब तो ये 1/11 ही हो गया ना कार्ड निकालने के बाद. तो ये कार्ड निकालने से जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है उसमें इफेक्ट पड़ रहा है. सो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट. दिस इज कॉल्ड व्हाट? हैविंग अ हायर ग्रेड्स एंड गेटिंग अ स्कॉलरशिप. ठीक है? हैविंग अ हायर ग्रेड्स एंड getting a scholarship, selecting a ball from a jar, not replacing it, then selecting a second ball. जो मैंने एग्जांपल दिया आपको.
मेरे पास 4 रेड 4 ब्लैक है, एक मैंने निकाली वो रेड आ गई, अब मैं बता रहा हूँ बताओ रेड की क्या है या ब्लैक की क्या है ओवरऑल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अब बॉल्स 8 नहीं है 7 ही है, तो ब्लैक की भी 4/7 होगा, रेड का क्या होगा 3/7 होगा। पहले दोनों का क्या था 4/8, दैट्स 1/2। नहीं आ रहा समझ? हाँ मैं कह रहा हूं अगर पहले 4 बॉल्स आपको थी रेड, ठीक है, और 4 बॉल्स हैं, अच्छा कलर चेंज कैसा ब्लैक, 4 बॉल्स हैं ब्लैक, ओके। अब आपने एक ही निकाली, इसको रिप्लेस नहीं किया, हमेशा ही की है। पहले क्या थी रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड की प्रोबेबिलिटी पहले थी 4/8, ब्लैक की क्या थी, दैट इज 4 टाइम्स 1 2 1/2, दोनों की 1/2 थी। लेकिन जब आपने रेड निकाली तो इवेंट ए हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाज व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाज अबाउट द रेड बॉल, वो निकाल लिया आपने। अब तो रेड नहीं है, अब तो 7 बॉल्स ना टोटल, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नाउ गेटिंग द रेड बॉल 3/7, और आई कुड से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक, नो इट इज नॉट सेम, राइट। इसकी एक फॉर्मूला होती है, ये ऐसे नहीं करते हैं, फॉर्मूला से करते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इट्स कॉल्ड व्हाट इज, कि जिसमें एक के करने से मैं, हाँ मैं बता रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, व्हाट इज द गिवन ए और गिवन बी, व्हाट डज इट मीन। हाँ मैं प्रोबेबिलिटी बी कह रहा हूं लेकिन ए हो चुका है, ए हो चुका है, प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, थोड़ा ध्यान दो, ये सिंपल है, ठीक है। लेकिन आप सीरियस नहीं पढ़ रहे हो ना, जो एग्जांपल्स मैंने बताए वो आप घर में नहीं कर रहे हो, अदरवाइज इट्स इजी पीजी, आपको फिर घर में करना है ना काम थोड़ा सा, यू हैव टू वर्क ऑन इट। आप आ जाते हो जाते हो कॉलेज, आप पहले जो हमने पढ़ा आज तक हमने खास पढ़ा भी नहीं उतना कुछ, आपकी इंटरेस्ट ही नहीं जैसे कुछ, क्लास भी नहीं दे रहे हो ठीक से, तो पहले आप जो जितनी एग्जाम्पल्स हमने की उस पर घर में थोड़ा सा काम करो, ये खुद दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। ये यही सेम चीज है, यहां से अजान भी आ गई, दिस इज द फॉर्मूला वी हैव, दिस इज द फॉर्मूला वी हैव, दिस इज सिंपल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, what is it that is probability of b given, sometimes we don't write it like this, we don't write it b over a, we write it probability of b given a like this also, okay, technically we write it like this. So this is the probability of b given a, what is it, read it. So it is, अगर a नीचे है ना तो यहां a लिखना, ऊपर इंटरसेक्शन, ऊपर, ठीक है, जो a एंड b का इंटरसेक्शन है डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज द फॉर्मूला। एंड दूसरी अगर a गिवन b होगा, इफ a गिवन b है तो उसमें कैसे करेंगे, इसे प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b अपना ही रहेगा, लेकिन अब यहां b था नीचे तो यहां b लगाना है, गॉट इट। सो लुक इनटू माय आईज एंड टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b, b गिवन a, ए इंटरेस्ट भी अपना ही है, अगर नीचे बी है तो बी लगाओ, ठीक हो गया, ओके। अगर इसकी बात हम करेंगे, जहां पे मैंने कहा था कि अगर इंडिपेंडेंट है, ये तो डिपेंडेंट वाला हो गया ना, ये तो डिपेंडेंट, ये किसका ये फॉर्मूला है, इफ दे आर डिपेंडेंट, अरे यार ये तो डिपेंडेंट का है, किसका है, अगर इंडिपेंडेंट हो गया, अगर क्या हो गया इंडिपेंडेंट में, मुझे पहले ये बताओ आपकी व्हाट विल बी पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोडक्ट, इट विल बी प्रोडक्ट, सो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो दिस इज गॉन, व्हाट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डिपेंडेंट में, ठीक है, नहीं इंडिपेंडेंट में, सॉरी इंडिपेंडेंट में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, अगर ये इंडिपेंडेंट है, क्या है, ए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, ए तो कोई फर्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली, इज इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला लगानी नहीं है फिर, ठीक है ना। इफ आई से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी गिवन ए, जबकि ए तो इंडिपेंडेंट है ना आपस में, इसका ये डाई अलग था, या डाई अलग है, इसमें क्या किया आपने, इसको क्या इसके साथ है, ठीक है, तो वो तो बी ही होगा ना। अगर फॉर्मूला से निकालोगे तो आप कहोगे भाई जो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं क्या होते हैं, उसमें पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो उसमें ए और ए खत्म, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकलेगा। इसमें लगाओ, अगर 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 इंडिपेंडेंट है, अगर क्या है, व्हाट विल बी दिस इक्वल टू, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली, क्योंकि बी से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। बात समझ आई? हाँ जी, फिर समझाऊं? श्योर? इंडिपेंडेंट इवेंट में तो इसका इंडिपेंडेंट है, आपस में कुछ है ही नहीं, मतलब आपने मार्क्स लाए और उस क्लास में उसने मार्क्स लाए, आपके मार्क्स से उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अलग है आप अलग हो, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग द मार्क्स गिवन दैट क्लास हैज गिवन द समथिंग, सो यू से व्हाटएवर, व्हाट द हेक मैन, मुझे क्या उनके साथ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, ठीक है। मगर अगर मैं इस क्लास में बता रहा हूं कि अगर आपने मार्क्स लाए तो आपको मैं सिलेक्ट करूंगा इतने, अगर इसने मार्क्स लाए तो अब अगर इसने लाए हैं मार्क्स, तो अगर इसे 70 लाए हैं मार्क्स, ठीक है ना, अब आपको तो 70 से ज्यादा लाए हैं ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी से आपको फर्क पड़ रहा है। सो नाउ देयर इज एन, दिस इज द डिपेंडेंट इवेंट, दिस इज डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। सो डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी में ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक हो गया ना जी? ना, हमें सेव नहीं करना। सो डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी में क्या लगाएंगे, ये वाली। इंडिपेंडेंट में तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, इट डजंट मैटर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इट विल बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इट विल बी ए, नो problem, right? Only thing is if this is dependent, then probability of B given A will be equal to A intersection B divided by A. Got it? This is the question. If an odd number comes up on a tossing a die, आपने टॉस किया डाई, odd number आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर odd आ रहा है, find the probability of it is being the prime number. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग, अब आपने डाई मारा, वहां पे ऑड नंबर आ चुका है, इवेंट हो चुका है कि ऑड आ गया, ऑड में डाई में क्या क्या होता है, सो ए मेरा है, ये आ चुका है, ठीक है। अब मुझे बताना है कि इसमें जो ए आ चुका है, इस सॉरी 135, ठीक है, इस 2 को नमक लगा था, मुझे लगा ये ऑड है, ठीक है। तो अगर इसमें हिवाशी तो ऐसे बैठी है जैसे तू मूवी देख रही है, वो सीरियस बन थोड़ी सी। सो मैं कह रहा हूं कि अगर ए हो चुका है कि भैया ऑड है, तो ऑड में अब जो पता है कि ऑड आ चुका है ना, ये पता है ऑड आ चुका है, तो ऑड कितने आ सकते हैं, 3 ही आ सकते हैं, तो अब 6 की बात नहीं होगी। तो जो दूसरा मैं कह रहा हूं कि भैया बताओ प्राइम क्या है, प्राइम होगा कि नहीं होगा, अगर ऑड नहीं था, आया नहीं था, तो मुझे 6 में से निकालने थे अपने प्राइम, है ना। प्राइम कौन कौन है, 3 और 5, 2 नहीं होता, नो। ए में देखो ना, पहले ए में आपको ऑड नंबर आ चुका है, अब इसमें आपको बताना है प्राइम, अब इसमें क्या बताना है, तो अब 6 की बात नहीं होगी, अब कितने की बात होगी, तो प्रोबेबिलिटी चेंज होगी कि नहीं होगी। सो पहली सिंपल सी बात है कि ए 135 है, बी 235 है, ठीक है, बी क्या है। सो अब आपका जो बी गिवन ए होगा, तो पहले इंटरसेक्शन बताओ क्या है, पहले क्या बताओ, तो वो वाला एक्सक्लूड होगा ना, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं ना, ए इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, द ए इज गिवन। सो अब हमें इसमें से बताना है, तो हम पहले देखें इंटरसेक्शन क्या है इनका, इनमें कॉमन क्या था, इनमें कॉमन था 3 और 5, ठीक है, वो इसमें निकलेगा, और डिवाइड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज व्हाट, गेटिंग ऑड फ्रॉम द डाई, जो आपका सैंपल स्पेस है, दैट इज 3/6, 3/6 is 1/2,
सो यानी कि ये आप इसको डिवाइड करो, यानी कि आप 2/6 यानी कि इसका निकलना 2/6 ए इंटरसेक्शन बी, that is 2/6, that's 1/3, 1/3 divided by 1/2, that's gonna be 2/3. Okay, this is 1/3 यहां पे आ गया, इसको डिवाइड करना है हमें 1/2 का, so 1/3 multiply by 2/1, जो मल्टीप्लाई करो उल्टा करो, so that is 2/3. Does make sense? So this is the conditional probability, and we'll discuss the Bayes theorem maybe tomorrow, or we'll see. आपका कब ये है वहाँ पे है ना ये बूट कैंप? हाँ 1:30 बजे, तो हम दे सकते हैं ना इस वक्त क्लास? नहीं, कल से कितने बजे हैं? 12:30 है ना, तो देखना पड़ेगा क्या करें। फिलहाल बंद कर लो। रीता